Everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we will do the one of the past paper, and this is from the PM F5 SEC F5 paper, and the question name is Stay Clean, and this is from the December 2009 attempt. So I know this is very old, but few years ago, I don't remember the in which session, but this question has been came in the pre-mock. I'm pretty much sure the question name was different, but the everything was the same. So and this was a very good question for the shutdown decision. That's why I am recording the video, and this is also the this video is required by one of the student as well. So we will complete this full question in today's video. So let's start the today topic. So let's first move to the requirement. You can see there are three requirements, and the first one is to calculate whether or not it is worthwhile ceasing to produce the TD now rather than the waiting 12 months. Ignore any adjustment to allow for the time value of money. So basically, the first one is like asking that you are deciding to cease the production of the one of the product TD. So you have to decide whether to cease now or after 12 months. अगेन वी आर लाइक हम लोग डिसाइड करें कि 12 महीने बाद बंद करने का. सो वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आता है जहाँ पे हम लोग को सर्टेन अमाउंट को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ता है. बट क्वेश्चन ने कहा यू शुड इग्नोर इट. ठीक है. सो और इजी. सो अब हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि अभी सीज करें और कि 12 महीने बाद. अब इसके लिए रिलेवेंट कॉस्टिंग विल प्ले ए मेजर रोल. सो जो हमारे डिसीजन से एसोसिएटेड कॉस्ट है उसको कंसिडर करेंगे, देन हम लोग डिसीजन लेंगे. सो इट इज फॉर द 13 मार्क एंड द क्वेश्चन रिक्वायर द कैलकुलेशन. क्वेश्चन का वर्ब देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग ये एसीसी स्टूडेंट मिस करते हैं कि वर्ब क्या बोल रहा है, क्या हम लोग से रिक्वायर्ड कर रहा है. सो वर्ब का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है. सो now second one is to explain two pricing strategy that could be used to improve the financial position of the business in the next 12 months, assuming that the TD continues to be made in that period. So अब यहाँ पे दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बोल रहा है that will improve our financial position, that is the balance sheet in the next 12 month. ये एज्यूम करके कि हम लोग TD को भी बना रहे हैं. ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए. सो दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी 2 मार्क्स इच. थर्ड कहता है briefly describe 3 issues that Stay Clean should consider if we decide to outsource the manufacture of one of its future product. So outsourcing की बात कर रहा है and it is for the 3 marks. Quite easy, I think. So I think last two part are the theoretical, which don't require any calculation. You need to only explain and or need to describe the 3 issues. So let's have a rough background of the scenario, what the this scene going on. Then we will come to again the requirement, then we will start solving the question. Question is Stay Clean, and Stay Clean manufacture and sells a small range of kitchen equipment, especially the product range contain a dishwasher DW and washing machine WM and tumble dryer TD. So 3 product है उनका. And TD is the one of the rather old design and has for some generated negative contribution. It is widely expected that in 1 year time the market for this design of TD will cease and people switch to the washing machine that can also dry clothes after the washing machine cycle has completed. So basically अब TD outdated होने वाला है. अब ये फीचर वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी अवेलेबल है, सो बट ये 12 महीने बाद आएगा. इसीलिए कंपनी वांट टू डिसाइड वेदर इट्स बेटर टू सीज नाउ और आफ्टर 12 month. Stay Clean is trying to decide whether or not to cease the production of TD now or in the 12-month time. So when the new combined washing machine dryer will be ready to help this decision, the following information has been provided. So we have been provided the information. So we need to figure out the what will be relevant cost for this decision, and we will note it down one by one. ठीक है. So अब हम लोग प्रोडक्ट 3 है DW, WM एंड TD. सो अब हम लोग अगर सीज नाउ करते हैं तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वी विल लूज दैट.
राइट, जो सेलिंग प्राइस रेवेन्यू आ रहा था, सो हमारा वो रेवेन्यू लॉस्ट हो जाएगा. लॉस्ट रेवेन्यू विल बी आपका इट विल बी इन द नेगेटिव, राइट. सो नेगेटिव 80 पर यूनिट, और कितना यूनिट बना रहे थे हम लोग, 1200. सो 1200. सो ये अमाउंट हम लोग लूज कर देंगे. इफ वी डिसाइड टू सीज नाउ, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 12 महीने बाद बंद करें, और या फिर अभी बंद करें. ओके, सो इफ वी विल सीज नाउ मीन्स अभी हमारा रेवेन्यू गया. ये रेवेन्यू जो 80 आ रहा था पर यूनिट, वी विल नॉट रिसीव इट इफ वी डिसाइड टू सीज नाउ अगेन. बट एट द सेम टाइम जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो सब बचेगा हमारे पास, सेव हो जाएगा. एंड द अमाउंट विल बी एक सेकेंड. हाँ, तो आपका मटेरियल है ना, मटेरियल कॉस्ट सेव्ड, मटेरियल कॉस्ट सेव्ड आपका कितना हो जाएगा, 50 इंटू 12 से. सो ये हमारा सेव्ड होगा. अगेन लेबर कॉस्ट विल ऑल्सो बी सेव्ड, ये हमको पे नहीं करना पड़ेगा. लेबर कॉस्ट सेव्ड. ओके, सो द वे यू वेल प्रेजेंट द आंसर, वैसे मार्कर को मार्क करने में इजी होगा. सो हमारा कितना लेबर कॉस्ट बच जाएगा, 40 इंटू 12 से. सो अगर नेट में इम्पैक्ट देखोगे कितना का हमारे पास बच रहा है, इट्स 12,000. दैट मीन्स जो कंट्रीब्यूशन है वो, अब देखो अगर कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे होते हैं, अगर हम लोग अभी सीज कर देंगे तो वो कंट्रीब्यूशन अर्न नहीं करेंगे, सो वहां पे -12,000 आता. बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारा नेगेटिव में है, इसीलिए हमारा पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है 12,000. ठीक है, सो आप यू कैन टेक द कंट्रीब्यूशन और ऐसे 1 by 1 ऐसे इवेल्युएट करके भी जा सकते हो, नो इश्यू एट ऑल. सो ये पार्ट हो गया हमारा इसका. बट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दिया होता है, इन दैट केस वी वॉन्ट कंसिडर. व्हाई? क्योंकि वो तो एनी हाउ लगेगा ना. ठीक है, वो तो आप ये दोनों प्रोडक्ट बना रहे हो ना, उसके लिए तो फिक्स कॉस्ट लगेगा, आप ये बनाओ या ना बनाओ. हाँ, एनी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होता है, इन दैट केस वी कैन कंसिडर इट इन आवर डिसीजन, राइट. सो बट अभी नहीं है. So it is thought that some of the customers that buy TD also buy a DW and a WM. It is estimated that the 5% of the sales of WM and the DW will be lost if the TD cease to be produced. So basically the customer who is buying the TD is also buying the WM and DW, and the इसके वजह से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 5% ऑफ द बोथ ऑफ देम. सो अगर ये चीज हो जाएगा, वो रेवेन्यू भी रिसीव नहीं होगा हमको, है ना. सो वो रेवेन्यू रिसीव नहीं होगा, इन दैट केस वी लॉस्ट दैट अमाउंट, राइट. सो यहाँ पे भी देखा जाए तो हमारा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि आप ये रेवेन्यू, जैसे हम लोग ने लॉस्ट रेवेन्यू, मटेरियल सेव, लेबर कॉस्ट सेव किया, वैसे कर सकते हो. और व्हाट यू कैन डू इज लॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लॉस्ट कंट्रीब्यूशन करके लिखो, और यहाँ पे नोट में वर्किंग 1 डाल दो हेडिंग, एंड गो बिलो डाउन ऐसे वर्किंग 1 लिखो एंड बोल्ड ऑन इटैलिक. सो ओके, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम DW, हम लोग DW से कितना अर्न करें, वी आर अर्निंग 80, राइट. सो 80 इंटू 5,000 यूनिट. Okay, so this will give you contribution of sorry. I'm right or wrong? Oh yeah, right. So and ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, TD 5%. तो अगेन वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 5%, क्योंकि TD सेल होने की वजह से 5% ऑफ DW सेल हो रहा है. And again, if we talk about the contribution from your other product, that is the WM, so इस केस में भी सेम चीज होगा. आवर कंट्रीब्यूशन इज लाइक 170 पर यूनिट. कितना यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, 6,000, आउट ऑफ विच पार्ट 5% इसका TD से आ रहा है. ओके, सो व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन दैट वी आर अर्निंग फ्रॉम दिस टू प्रोडक्ट ड्यू टू TD, 71,000. बट इफ वी डिसाइड टू सीज नाउ हमारा ये TD, in that case we will no longer receive this
कंट्रीब्यूशन। एंड वन मोर थिंग, ये प्रेजेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क्स मिलते हैं इसके, मतलब प्रोफेशन में जाओगे बहुत यूजफुल होगा। जैसे ये सब तो लाइक अमाउंट है, करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब एक मॉनेटरी वैल्यू को। सो इट्स बेटर की टू हैव ए कॉमा और डॉलर आगे में, सो इट विल बी इजी, राइट। ये सबको वैसे करना इजी होगा। ओके ओके, सो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन इज आवर 71,000। ये ठीक है यहाँ तक? ऑल राइट, तो ये डन यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। सो all the direct labor force currently working in the TD will be made redundant immediately if it cease now. So अगर अभी सीज करने का डिसीजन लेंगे so उनको redundant करना पड़ेगा, मीन्स ऑफिस से निकालना पड़ेगा, एंड इसके लिए उनको वो कॉस्ट पे करना पड़ता है, redundancy payment that is known as. So ये अमाउंट है 6,000. So हमारा redundancy payment अमाउंट कितना है? 6,000, ठीक है, अल्टरनेट जीरो, अल्टरनेट जीरो। ओके, ये हो गया रिडंडेंसी पेमेंट हमारा। तो हम लोग पे कर रहे हैं, सो इट शुड बी इन द नेगेटिव। जो हमारा सेव होगा वो पॉजिटिव है, जो खर्चा होगा वो नेगेटिव, ठीक है। सो ओके, रिडंडेंसी पेमेंट डन। आगे क्या बोलता है? स्टे क्लीन वेटेड फॉर 12 months एंड existing labor forces would be retained and return cost at the cost of 3,500 to enable them to produce new washing dryer product. Recruitment and training cost of labor in 12 months would be 1,200 in the event that redundancy takes place now. So यहाँ क्या बोल रहा है? कंपनी के पास दो चॉइस है, राइट? सो लेट मी राइट डाउन हियर आपका रीट्रेनिंग। ओके, तो अगर मैंने अभी सीज किया, ठीक है, सो अभी सीज किया तो मुझे रिडंडेंसी पेमेंट देना पड़ेगा क्योंकि मैं स्टाफ को निकाल दूंगा। बट इफ आई विल वेट फॉर 12 months देन मैं उस स्टाफ को एक ट्रेनिंग दे के उनको नया जो प्रोडक्ट आएगा, न्यू वॉशिंग मशीन एंड डाइंग प्रोडक्ट, उसके लिए मतलब उधर शिफ्ट कर सकते हैं, उस स्टाफ को बोल रहा है। बट उसके लिए कॉस्ट कितना है? 3,500। सो ये यहाँ पे रिलेवेंट होगा, यहाँ पे ये हम लोग अगर चूज किए तो ये खर्चा लगेगा हमारा इन द कमिंग ऑफ डेज, ठीक है, ये रिलेवेंट हो गया, ये डिसीजन से रिलेटेड है। And the recruitment and training cost of labor in 12 month time would be 1,200 in the event that redundancy takes place now. अगर अब भी लोगे तो हमारा कितना आ रहा है? 1200। अब यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। आई नो सब स्टूडेंट फंसेंगे यहाँ पे, सब के सब फंसेंगे, ये चीज मिस आउट करेंगे। अब तो अगर हम लोग 12 महीने बाद डिसीजन लेंगे देन 3,500 रिट्रेनिंग कॉस्ट होगा। बट इफ वी डिसाइड टू चूज नाउ, इफ वी डिसाइड लाइक वी शुड रिडंडेंट देम नाउ, देन इन दैट केस आपका 12 से लगेगा रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट 12 महीने का, ठीक है। बट अगर हम लोग अब भी रिडंडिंग करेंगे, ये तो 3,500 बच रहा है ना, है कि नहीं? सो ये सेव हो रहा है, सो वी शुड ऐड इट हियर 3,500 जो कि स्टूडेंट मिस करते हैं। ओके, सो ये हमारा नेट में सेविंग कितना हो रहा है? 2,300 का। ओके, सो देन नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट? स्टे क्लीन ऑपरेट इन द जस्ट इन टाइम पॉलिसी, सो ऑल द मटेरियल कॉस्ट stay clean operate a just in time policy and so all the material cost would be saved on the TD for the 12 month if TD production cease now. वो तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया मटेरियल कॉस्ट कितना सेव हो रहा है, and equally the material cost relating to the lost sales on the WM and DV would also be saved. Obviously not only on the TD but हमारा material cost WM and DW में भी सेव हो रहा है, ठीक है। However, the material supplier has volume based discount scheme in the place as follows. So अगर टोटल खर्चा साल के इतने करते हो तो आपको इस बेसिस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। So this is the list that if you are like doing the expenditure between this amount, then you will be entitled for this discount. Stay Clean uses the supplier for all this material for all the product is manufactured. The figure given above is a cost per unit table for the material cost per unit and net of any discount Stay Clean already qualifies for. अभी ये भी ट्रिकी पार्ट है, लिटरली ट्रिकी पार्ट है, अब यहाँ पे फंसेंगे। सो हम लोग यहाँ पे देखो
हम लोग जितना अमाउंट परचेज कर रहे हैं उस हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा है, बट अगर इससे कम हुआ तो ये डिस्काउंट लूज कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारा अगर हम लोग टीडीसीज करेंगे तो उसका मटेरियल तो बाय नहीं करेंगे, मटेरियल बाय नहीं करेंगे तो फिर हमारा हो सकता है डिस्काउंट का परसेंटेज भी चेंज हो। सपोज लाइक पहले 10,000 600,000 बाई करते थे जहाँ पे 0% नहीं 800,000 बाई करते थे जहाँ पे हमारा 1% डिस्काउंट मिल रहा था, बट अभी टीडीसी होने की वजह से हम लोग 600,000 परचेज कर रहे हैं जिसपे 0 डिस्काउंट है, मीन्स 1% डिस्काउंट लूज किया, इससे हमारा परचेज प्राइस बढ़ेगा। राइट, सो अब हम लोग को ये लॉस डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना हम लोग लूज कर देंगे इफ वी सीज टू प्रोड्यूस द टीडी। लॉस डिस्काउंट एंड वर्किंग टू नाम दे दो इसको, ऐसे रेफरेंस देख लेके लिखोगे लाइक द वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग किस किस में की हो, सो एग्जामिनर पे गुड इंप्रेशन पड़ता है एंड दे विल लाइक इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस होंगे और लाइक उनको इजी होगा मार्किंग करने में, यानी ये प्रोफेशनल लेवल में आपको इसका मार्क्स रहता है अलग से एलोकेट किया हुआ। सो इसलिए मेक ए हैबिट फ्रॉम टुडे। Okay, so this is for working 2 and we are calculating the loss discount. तो अभी देखा जाए हमारा करेंट परचेज लेवल क्या है, करेंट परचेज लेवल। ओके, सो हमारा करेंट परचेज लेवल क्या है, सो इफ वी मूव टू द दैट ग्राफ or table, I mean sorry, I mistakenly I said the graph. If you look to that information given regarding the product, so what is the quantity that we are purchasing now? So हमारा मटेरियल 70 यूज हो रहा है in the DW and the unit we are producing is 5,000. Again 100 यूज हो रहा है WM में and the material we are producing is 6,000. And TD में 50 यूज हो रहा है, 50 per unit है and the what material we the unit we produce is 1200. Okay, let me repeat one more time. So basically हमारा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट DWM मटेरियल के लिए 70 पर यूनिट है एंड द मटेरियल वी आर प्रोड्यूसिंग इज यूनिट वी आर प्रोड्यूसिंग इज 5,000. सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट आवर कॉस्ट एंड सिमिलरली फॉर द WM द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 100 एंड द यूनिट वी आर प्रोड्यूसिंग इज 6,000. Similarly for the TD 50 is the per unit material cost and the 1200 is the unit that we are producing. So this will give us the total material of this amount. So which is your 1,010,000, right? So and this amount currently falls in the which one? I mean slab, last one. So that means we are entitled for the 5% discount. You can write it down here, entitled for 5% discount. I hope till that you are clear. So now this was the current level of purchase, but if we take a decision to cease now, then what will be the new level of purchase? What will be the new level of purchase? So in that case we will only produce the first two products. So let me copy and paste this one and remove the last portion of the TD, I mean. Okay, and this will give us 950,000. So and this 950,000 falls in the slab of second last and where we are entitled for the 3% discount, right? Yes. So how much discount we lose? Lost discount percentage is 2%, right? If we are taking a decision to cease now. Okay. Okay. So now one more thing. Okay. So now this here we will get only 3% discount, but at the same amount earlier we are getting the 5% discount, right? So how much we lose? $19,000. So the amount we lose is 19,000. So means our purchase price will increase by 19,000.
So here we need to pay this amount, so that's why we will keep 19,000 in minus. I hope this is till date you are clear. Now stay clean, use this supplier for all its material. We have read all this. The space for the factory currently used for TD will be sublet for the 12-month on the short-term lease contract. If production stops now, the income from that contract will be 12,000. Okay, see. So if you decide to cease now, then you can let those space in which factory have been set up. जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुआ था उसको आप भाड़े पे देके किसी और को एंड रेंटल कमा सकते हो एंड रेंटल इनकम क्या है 12,000. सो रेंटल इनकम हमारा ये रिलेवेंट होगा किसके लिए अभी सीज करने के लिए अभी सीज करेंगे तब ये अर्न करेंगे ना. सो दैट्स व्हाई इट्स रिलेवेंट क्योंकि ये डिसीजन से रिलेटेड है. And next is the supervisor currently classed as an overhead supervises the production of all three products spending approximately 20% of time on the TD production. They would continue to be fully employed if the TD ceased to produce now. So supervisor को तब भी पेमेंट मिल रहा था और सीज करने के बाद भी पेमेंट मिलेगा. So there is no changes, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. So this is all the relevant cost associated with these two decisions. So now let's do the total. One more thing, you need to show this zero as well. Supervisor का जो cost है यहाँ पे zero रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा that you have known to the concept. और notes में कहीं छोड़ दो क्यों आपने zero लिया. क्या notes में छोड़ोगे? You can write this like this W3 or note 3. You can write like this and here you can put the note that note 3 and you can write that supervisor cost is taken as zero because this is fixed cost which is not relevant to decision making. So this in this kind of way you can leave the note and so that कि अब एग्जामिनर को लगेगा कि आप ये टॉपिक को समझे हो अच्छे से and they will give you credit. So लास्ट में डिस्कस करेंगे कहाँ मार्क्स कटेगा if you will do the mistake. ये हो गया. अब टोटल करते हैं, ठीक है. So total amount will be, let me do bold. Okay. Sum from here to here. Okay. See, अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए हम लोग को अगर इफ वी आर डिसाइडिंग टू सीज नाउ हमको लॉस कितने का हो रहा है 69,700 का. बट इफ वी डिसाइड टू सीज आफ्टर 12 मंथ हमको कितने का लॉस हो रहा है 3,500 का. सो यू कैन राइट ए वन लाइन दैट फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव it is not worth to cease production now. ऐसे लिख सकते हो. और what you can write is from the financial perspective it is beneficial to cease production in 12 month. ये दोनों वे में लिख सकते हो, ठीक है. अब ये क्या क्लीन है ऐसे आप प्रेजेंट करो then you will obviously get the credit. अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, मतलब इस स्टेप का मार्किंग अच्छे से मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज फॉर द पार्ट 1. लेट्स मूव टू द पार्ट 2 एंड द पार्ट 2 क्या कह रहा है हमारा explain two pricing strategy that could be used to improve the financial position of the business in the next 12 months assuming that the TD continue to be made in that period. So हमारा TD अभी कंटिन्यू हो रहा है एंड और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, राइट. इतना ही इंफॉर्मेशन है. ऑलराइट. सो व्हाट डू यू थिंक कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अच्छा होगा, राइट. अब जैसे कि देखा जाए हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है, टीडी का डिजाइन ही आउटडेटेड है, राइट. ये प्रोडक्ट ही आउटडेटेड है. तो हमको सेल्स इंकरेज करने के लिए हमको क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं.
तो पहला तो हमारा लाइक कम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग कर सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग में व्हाट वी कैन डू इज लाइक जो हमारा ये टीडी आई मीन स्टे क्लीन है ना, वो टीडी को ना दे कैन सेल द टीडी इन द कॉम्बिनेशन विथ अदर गुड्स और सर्विस लाइक, और वहाँ पे डिस्काउंट भी सर्टेन देगा ना, तो आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल ये कम्प्लीमेंटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन एंड टम्बल ड्रायर, ये दोनों प्रोडक्ट अभी दोनों संग में आ रहे हैं ना, राइट। एग्जाम्पल जैसे कि अब हम टीडी बेच रहे हैं, राइट, टीडी 80 में है। अगर हम कस्टमर को ऐसे बोल सकते हैं कि इफ यू विल बाय द WM along with that we will give you certain amount of discount on the WM, ऐसे करके बताएंगे कस्टमर को, तो कस्टमर विल अट्रैक्ट। तो ऐसे भी हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एंड अदर वन इज आपका कि एक पैकेज में ऑफर करना, ठीक है। सो एक पैकेजिंग प्राइस बनाएंगे जहाँ पे हम लोग ऑफर करेंगे सारे तीनों प्रोडक्ट को। अब इससे क्या होगा कि लाइक ओवरऑल में देखेंगे, हम लोग इंडिविजुअल वाइज नहीं देखेंगे। जैसे अगर हम लोग तीनों प्रोडक्ट बेचते हैं, हाउ मच कंट्रीब्यूशन वी आर अर्निंग, 160 प्लस 80 मीन्स 240। सो ओवरऑल हम लोग 240 अर्न कर रहे हैं। सो ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। गिव इट ट्राई, अगर नहीं हुआ तो लेट मी नो, मैं बता दूंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट, briefly describe the three issue that the stay clean should consider if decide to outsource the manufacture of the one of its future product. इन केस ऑफ आउटसोर्सिंग हम लोग को बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग कॉस्ट एंड बेनिफिट देखेंगे। सो वेदर इट इज बेनिफिशियल टू मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और लाइक कि बाहर से आउटसोर्स करना इट विल बी लाइक गुड डिसीजन। तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, अगर हमारा कॉस्ट मैन्युफैक्चर करने का सस्ता है, आई मीन इट्स चीपर, देन इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू आउटसोर्स द प्रोडक्ट, राइट। सो ऐसे ये एक हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। एंड दूसरा इश्यू क्या आएगा कि अब वो जो आउटसोर्सिंग वाले जो बंदे होंगे, आई मीन जो कंपनी होगी, वो हमारे कंपटीटर के लिए भी काम कर रहे होंगे। सो अगर उनको गुड डील नहीं मिला तो वो कंपटीटर को प्रोडक्ट सेंड कर देंगे, हम लोग को सेंड नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलेगा। सो वहां पे कस्टमर विल बी डिसअपॉइंटेड एंड दिस could damage the our I mean the image or the brand or goodwill। so कंपनी का रेपुटेशन पे बात आती है। एंड उसके बाद में क्वालिटी पे देखेंगे। सो अगर हम लोग को इवन तो आउटसोर्सिंग हम लोग को चीपर पड़ रहा है, तो चीपर में ये हो सकता है कि क्वालिटी अच्छा ना हो, ठीक है। सो ये सब फैक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे। और एक और होता है लॉस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग हटा दिए और आउटसोर्स कर रहे हैं, तो इफ इन फ्यूचर वी डिसाइड इट टू लाइक फिर से अंदर से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय तो मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग पहले एम्प्लॉय को रिडंडेंट कर दिए हैं, अब उसको बुला के फिर से वो चीज स्टार्ट करना इट वॉन्ट बी पॉसिबल। So yes, a factor you can write. It's only for the 3 marks. Not much. I mean, detailed work is required. So 3 good point will lead to the, I mean, score you higher. So these are the. I mean, this is the way you should attempt this kind of question. And I hope now this video is useful. If you found this video useful, please share it among your friend and don't forget to subscribe my channel. Thank you.